Hello everyone. So today we are going to study about the female reproductive part of the flower. Dear students, as we have already studied about the structure of flower, there we had a point called essential plant whorls. एक फ्लावर के वो essential whorls कौन कौन से होते हैं जो sexual reproduction में helpful होते हैं, right? So we got this information there that androecium and gynoecium, these are the two essential whorls of the flower which play important and direct role in the sexual reproduction. We have already studied about the androecium and the stamen. Right now we are going to study about the female reproductive part of the flower. That is, what is that? Just guess it. That is gynoecium. And each member of the gynoecium is called as carpel. What we call it? Carpel. In this video we will cover two topics simultaneously, and this is the very small topic. We will cover gynoecium or the carpel. Along with that we will study about the structure of ovule. Or in other words you can say structure of megasporangium. Okay, so now we are going to study about the structure of carpel. देखिए आपने पिक्चर तो अभी देख ही ली है, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि हमें इसे ड्रॉ करना भी आना चाहिए. ड्रॉ करने के साथ साथ हमें इसको पढ़ना भी आना चाहिए. ओके, हर स्ट्रक्चर के अंदर मिलने वाले हर एक पार्ट का अपना एक इंपॉर्टेंस है, उसे हम देखेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन. सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन आई एम गोइंग टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ female reproductive part in the flower, and this is the female reproductive part of the flower. This is the female reproductive part of the flower, right? So this is the female reproductive part where we have three structures. This is stigma, this is stigma, this is style, and this is ovary. This is ovary, right? So these all three constitute what? Carpel or pistil you can call it. So this is the stigma, style and ovary, and collectively they form the female reproductive part, gynoecium or the carpel, right? Gynoecium, look, always, as I suggest always, gynic word आता है हमेशा किसके लिए बेटा? Female के लिए. Gynic word is always used for the female. So here we are studying the gynoecium or the female reproductive part of the flower. Okay, so we move ahead. Now look, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये स्ट्रक्चर स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, तो सबको याद हो जाएगा. इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि इनको नेचर ने ऐसा बनाया क्यों है, ऐसी स्ट्रक्चर क्यों फ्रेम की नेचर ने, राइट? सो नाउ लुक, इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे रोल प्ले होगा? जस्ट इमेजिन, हियर इट इज द स्टिग्मा. You can see that this is flat and sticky in nature. This is flat and sticky in nature. This is flat and sticky in nature. Flat and sticky. Why? Why? Because you all know that in further there will be pollination. There will be pollination, and the pollen grain has to come here. अब pollen grain को proper landing मिल सके, प्लस वो वहां से जाए नहीं, इस बात को नेचर ने फैसिलिटेट किया और स्टिग्मा को फ्लैट बनाया. कैसा बनाया? फ्लैट बनाया. फ्लैट बनाने के साथ साथ उसको स्टिकी भी बनाया कि नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स इसको ऊपर आने वाले हैं और पोलन ग्रेन्स उसके ऊपर आकर स्टिक होने चाहिए. नेचर चाहती है कि अगली जनरेशन बने. ओके, सो दिस इज अबाउट द स्टिग्मा. नाउ वी मूव ऑन टू द अनदर स्ट्रक्चर, दैट इज स्टाइल. Look, this is a style, a long structure, okay? Don't think that this is hollow. Here it is filled with the tissues. The complete structure is filled with the tissues in the advanced system or in its earlier system. So, but right now we are going to study about the style in other concern. So this is the pollen grain on the top of the stigma, and this is the style. Now you see what is going to happen in further. This will germinate and there will be formation of pollen tube. There will be formation of pollen tube, right? So this pollen tube should take time. इसकी ग्रोथ में समय लगना चाहिए. समय क्यों लगना चाहिए? क्योंकि यहां पर मेल न्यूक्लियस, मेल गैमेट डिवाइड होगा माइटोटिकली. उसको समय मिलना चाहिए, वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाना चाहिए. इसलिए नेचर ने इस स्टाइल को लॉन्ग बनाया है.
it will provide some time for the proper division of the male nuclei. एक मेल गैमेट दो मेल गैमेट्स में कन्वर्ट होगा, पहले भी हो सकता है लेकिन इन जनरल ऐसा ही होता है, ठीक है। सो स्टाइल लॉन्ग होती है। इसके बाद बात करते हैं ओवरी की। ओवरी इज द बेसल पार्ट, स्टाइल इज लॉन्ग एंड ओवरी इज द बेसल पार्ट, आधारी है, बेस का पार्ट है, दिस इज अ बेसल पार्ट एंड इट इज अ swollen पार्ट एज वेल, इट इज अ swollen पार्ट एज वेल। ये फूला हुआ हिस्सा होता है, ठीक है। देखिए आप थोड़ा सा कंपैरेटिव मूड में आइए, मैं अक्सर बच्चों को बोलता हूं कि वो कंपैरिजन के साथ पढ़ाई करें। देखिए अगर इंसान की बात की जाए, थोड़ी देर के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग्स में जाए, देखिए वहां भी मदर के अंदर जो यूटेरस होता है वो स्ट्रेच होकर बड़ा होता चला जाता है और आने वाले समय में इसमें डेवलप होता है नया इंडिविजुअल, ओके। सिमिलरली you can see here in the plants, okay, so this is the ovary, the swollen part where the new individual is going to arise and new individual is going to develop। उसको पूरा समय चाहिए, उसको पूरा न्यूट्रिशन चाहिए, ओके। थोड़ा सा अपनी इमेजिनेशन को आप थोड़ा सा ब्रॉड करें, मैं बना देता हूं। ये कहां पर लोकेटेड है? इस थैलेमस पर लोकेटेड है, रिसेप्टेकल पर लोकेटेड है, राइट। अब देखिए हम आगे फर्दर मूव करते हैं। सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वेयर वी हैड अ स्टडी अबाउट द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, देयर इंपॉर्टेंस, उनका इंपॉर्टेंस क्या है, हर स्ट्रक्चर को नेचर ने ऐसा क्यों बनाया है, ओके। जस्ट रिमेंबर आई टोल्ड यू अबाउट द स्टेमन, उसमें फिलामेंट को नेचर ने लंबा रखा, क्यों लंबा रखा? जिससे एंथर एक्सपोज हो सके और पोलन ग्रेन्स अच्छे से डिस्पर्स हो सके। लाइकवाइज यहां पर भी वही सिचुएशन हमने नोट की, स्टिग्मा को फ्लैट बनाया टू रिसीव, टू प्रोवाइड प्रॉपर प्लेटफॉर्म, प्रॉपर लैंडिंग ऑफ द पोलन ग्रेन्स, एंड स्टाइल, लॉन्ग स्टाइल टू गिव enough time for the division of the male nucleus, and ovary a swollen structure where the new organism is going to develop, right? Now we move ahead। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है चैप्टर का, दैट इज द ओव्यूल, राइट। व्हाट इज दैट? ओव्यूल, दैट इज द फीमेल megasporangium, in fact you call it by another name, this is ovule। So the next topic that we are going to deal with is the ovule, which is going to contain ova, in fact the egg, right? This ovule can also be called as mega, actually there is a flash coming, so I write here mega sporangium, right? क्या बोला? मेगा स्पोरेंजियम, ओके। सो व्हाट इज द मीनिंग हियर? एंजियम मींस टू बेयर, एंजियम मींस टू बेयर, रखते हैं, क्या रखते हैं? स्पोर रखते हैं, क्या रखते हैं? स्पोर रखते हैं। कौन से? आपको मैंने बताया था, बड़ा डेजिग्नेशन किसको दिया है हमने? फीमेल को दिया है। सो दे कंटेन द फीमेल स्पोर, दे बेयर द फीमेल स्पोर, दैट मींस दे बेयर द megaspore, they bear the female gamete, in fact you can call it, right? So we are going to study the structure that is ovule or megasporangium। देखिए अभी यहां पर इस स्ट्रक्चर को पढ़ाने से पहले मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं। आपने मटर की फली को देखा होगा, ठीक है ना, पॉड ऑफ द पी प्लांट, राइट। देखिए इसको समझने के लिए मैं वहां पर जा रहा हूं, क्योंकि आपने ओव्यूल तो अपनी आंखों से शायद देखा नहीं होगा, लेकिन ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं वहां से आप एक कंपैरिजन ले सकते हैं। क्या कंपैरिजन ले सकते हैं? इसको देखिए आप, ये एक मटर की फली है, पॉड ऑफ द पी। जब हम इसको फली को देखते हैं तो वास्तव में आप उस फली को देख रहे हैं तो आप एक फ्रूट को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? फ्रूट को देख रहे हैं। और फली को जब आप ओपन करते हैं उसके अंदर जो सीड लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं? जो सीड इसके अंदर लगे हुए हैं बेटा, वो सीड वास्तव में कभी ओव्यूल हुआ करते थे। The seed that you see in front of you, or the seed that you eat in the vegetable, or directly sometimes we eat, that seed is in fact ovule before fertilization, right? तो आप ओव्यूल तो शायद मुश्किल होता है देखना, वो तो टीएस वगैरह में ही आप देख पाएंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अज्यूम करना चाहें, इमेजिन करना चाहें, तो आप एक सीड को देखिए और ये सोचिए कि ये कभी ओव्यूल था, ठीक है। आप उसको तोड़ते हैं, मटर के सीड्स को तोड़ देते हैं, तो उस पर जो रिज निकलती है, उस पर जो लाइन निकलती है, उसको आप मार्जिन कहते हैं। ये सब किसी न किसी चीज का मॉडिफिकेशन है, राइट। सो हमें पढ़ना है अबाउट द मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल के बारे में। नाउ आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम विद इन द ओवरी, राइट।
अच्छे से समझने के लिए ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम अच्छे से समझने के लिए मैं उसको ओवरी के अंदर ही ड्रॉ करूंगा, राइट। सो यू सी नाउ दिस इज द female reproductive part, that you call carpel, and this is the ovary, swollen ovary, right? In this swollen ovary मैं लिख भी देता हूं, कोई बात नहीं है, stigma, style and ovary. Now we move ahead, okay? अब आप देखिए इसी के अंदर हम बनाने जा रहे हैं क्या, ओव्यूल और मेगा स्पोरेंजियम, ओव्यूल और मेगा स्पोरेंजियम। देखिए कैसे हम इसको बनाएंगे, कहां से जुड़ा हुआ होता है। देखिए ये स्ट्रक्चर यहां से जुड़ती है, this is the structure of the ovule, right? Here you see, यहां पर आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि ये स्ट्रक्चर आने वाले समय में सीड में कन्वर्ट हो जाती है और यहां से हम उस मटर की सीड को तोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए ओव्यूल के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर होती हैं। जस्ट रिमेंबर यहां पर जिस ओव्यूल को आप पढ़ रहे हैं, रिमेंबर देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स इन एंजियोस्पर्म्स, बट द ओव्यूल दैट वी आर स्टडीइंग is of anatropous type, okay? Anatropous का मतलब होता है उल्टा, inverted, right? तो अभी तो बहुत सारे टाइप्स इसके अंदर होते हैं, पर आपकी क्लास 12th में सिर्फ और सिर्फ एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में जिक्र किया गया है। Now we'll see the structures, okay? मैं इसके बाद आपको इसका ओरिजिनल पिक भी दिखाऊंगा, वहां आप देख सकते हैं सारी चीजों को क्लियर, लेकिन हमें ड्रॉ करना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, समझना आना चाहिए, ठीक है। So look, this is the structure that we call placenta. What we call it? Placenta. This is the part that connect this complete ovule to the ovary, right? This is ovary. The ovary is connected with the ovule with the help of the placenta. Then after, this part is called as funicle. What we call it? Funicle, right? This funicle joins the placenta to the hilum. Okay, this is the very confusing area of this structure where generally students get disturbed. Okay, तो आप क्लियर कर लीजिए इस चीज को, आपको इसको बनाना है, किस तरीके से बनाना है। ये प्लेसेंटा है जो इस पूरे ओव्यूल को ओवरी से कनेक्ट करती है, इसके बाद ये फ्यूनिकल है जो हाइलम को प्लेसेंटा से कनेक्ट करता है, एंड हाइलम इज द स्ट्रक्चर व्हिच कनेक्ट this complete ovule to the funicle. Okay, so you make it clear, very clear, right? Now we move ahead. देखिए यहां पर एक आपको रिज नजर आती है, रिज का मतलब एक दरार आप उसको कह सकते हैं, स्प्लिट जैसा कह सकते हैं, एक उभार, एक लाइन होती है जिसे हम बोलते हैं रेफे। व्हाट वी कॉल इट? रेफे। इसके बाद हम मूव करते हैं इनर पार्ट्स पर, ठीक है। देखिए ये जो पूरा अंदर का हिस्सा है ऑलमोस्ट, ये बना हुआ है किसका? न्यूसीलस का। इसके अंदर सेल्स भरे हुए हैं, क्या भरे हुए हैं? सेल्स। सो वी कॉल इट न्यूसीलस। क्या बोलते हैं? न्यूसीलस। इन द बिगिनिंग स्टेज दिस इज अ मास ऑफ सेल्स, एंड वी कॉल इट न्यूसीलस। क्या बोलते हैं इसको? न्यूसीलस बोलते हैं हम, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें दो एनवलप है। इस बाहर वाले को बोलते हैं आउटर इंटेगुमेंट, और अंदर वाले को बोलते हैं ऑब्वियसली इनर इंटेगुमेंट। These outer and inner integuments will further turn into the seed coats, outer seed coat and inner seed coat, right? So a number of things are the modification of different structures, okay? जैसे थोड़ी देर पहले अभी हमने पढ़ा था, किसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, उस समय हमने इस बात का जिक्र नहीं किया, जिसको मैं कार्पल लिख रहा हूं, कार्पल। In fact that is the modification of leaf and you may call it megasporophyll. What you can call it? Megasporophyll. फिल का मतलब लीफ, स्पोर एंड मेगा का मतलब मैंने आपको बताया फीमेल। ऐसा स्ट्रक्चर जो फीमेल स्पोर को कंटेन करता है तो इसको हम कार्पल या मेगा स्पोरोफिल भी कह सकते हैं। वापस लौटते हैं हमारे स्ट्रक्चर की ओर।
This is outer integument, this is inner integument, this is nucellus, and these are the structures. Now this part is called as chalaza or chalaza. Okay, there can be two different types of pronunciation of the same thing, chalaza or chalaza. Now it's up to you what you speak or what your teacher suggests you. So this is chalaza. In fact, this is a structure, और हम ये कह सकते हैं कि ओव्यूल क्या होता है, यहां पर मिलने वाली सेल्स का इंटेगुमेंटेड स्ट्रक्चर है, और an ovule is an integumented structure of the callosal cells or the nucellus cells, right? So this is chalaza. This pore is called as micropyle. What we call it? Micropyle. देखिए ये micropyle क्या चीज है? This is a very minute hole. Okay, this is a very minute hole that is provided by the nature for the entry of pollen tube. Provided by the nature for the entry of pollen tube. आपको पता है क्या होने वाला है? यहाँ पर after pollination there will be pollen grain. There will be pollen grain. This pollen grain will germinate and will provide the pollen tube. This pollen tube will grow ahead. आगे बढ़ती चली जाएगी और इस pollen tube को इसके अंदर जाना है. कहीं से भी जा सकती है, लेकिन ये जनरल रास्ता होता है. So this is the micropyle area provided by the nature to allow the entry of pollen tube. Okay. Now look, number of structures we have seen. ये जो स्ट्रक्चर है अंदर आने वाले समय में this will turn into embryo sac, or you may call it female gametophyte. इसको हम अलग से पढ़ाएंगे, आपको लंबा टॉपिक है, एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो सकता है, इसलिए हम इसको अलग से पढ़ेंगे, ठीक है. सो दिस इज द एम्ब्रियो सैक एंड दिस और फीमेल गेमेटोफाइट इन फ्यूचर. अभी यहां पर सिर्फ ग्रुप ऑफ मास ऑफ सेल्स है, लेकिन दिस विल टर्न इनटू द एम्ब्रियो सैक और फीमेल गेमेटोफाइट. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल. नाउ सी द पिक्चर ऑफ द ओव्यूल. Here you find the different structures of the ovule like placenta, funicle, hilum, raphe, ovary, style, stigma. These all structures are meant for the specific purpose. Okay, how outer and inner integuments are for the protection. They are for the protection. This placenta is providing nutrition. This placenta is providing nutrition to the different structures inside. एक बात और ध्यान रखें आप, ये जो आपने ओव्यूल पढ़ा है, ये ओव्यूल एनाट्रोपस टाइप का है, उल्टा है, ठीक है. बट इन नेचर देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स. यू सी नाउ दिस पिक्चर. ओके, यू विल फाइंड हियर एनाट्रोपस, ऑर्थोट्रोफस, एम्फीट्रोफस, कैमाइलोट्रोफस, सिरसिनोट्रोफस, हेमीट्रोफस. These are the different types of ovules found in different types of plants of angiosperms. ठीक है. अब इनका नाम कैसे रखा जाता है, इनकी सिचुएशन, इनकी लोकेशन, ओरिएंटेशन, उल्टे हैं, सीधे हैं, इन्वर्टेड हैं, फ्लैट हैं, इरेक्ट हैं, क्या इनका शेप है, क्या इनका ओरिएंटेशन है, कहां पर ये लगे हुए हैं, क्या इनका दिखते कैसे हैं, ठीक है. सो इन दिस मॉड्यूल वी टॉक्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एसेंशियल whorl or megasporophyll, gynoecium, etc. Right? Then after we moved on to the structure of ovule or megasporangium. हमने कौन से ओव्यूल को पढ़ा, जो एनाट्रोपस है. कौन सा? एनाट्रोपस ओव्यूल है, जो सबसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल उनके अंदर होता है. राइट? इस स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ें. कंपैरिजन के लिए मैंने आपको एक मटर का छोटा सा पिक्चर भी दिखाया था, उसको अपने दिमाग में रखें. ओके, सो कीप स्टडीइंग. थैंक यू.